So hello everyone, welcome to the session. So guys, at this part of time, there are many aspirants who are asking us questions regarding current affairs. So this is a specific video that we have made for those specific questions that you are asking us. Like the first question, shall we prepare current affairs for the examination? Because that will depend on the weightage of current affairs questions being asked in the SEBI examination. Then comes the next important thing. If yes, I have to prepare current affairs, then what should be my desirable timeline? Then what are the sources that I should follow so that I can score good marks in the phase 2 examination. Now let's start with this thing. But before I begin, guys, an important thing for all of you, please download our फ्री गाइडबुक ऑफ सेबी दैट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू गाइस. यहाँ पे आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे एंड दैट इज एब्सोल्युटली प्रोवाइडेड एट फ्री ऑफ कॉस्ट. The link for that is given in the description below. Let's start with my first important question here. The first thing starts is that whenever you talk to me about current affairs, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि सबसे पहले वेटेज देखते हैं कि वेटेज कितनी है जी करंट अफेयर्स की इन दी सेबी एग्जामिनेशन. So guys, if you look at the previous year papers, there are hardly 2 to 3 questions that have been asked, and that's not a thing कि 2 to 3. किसी क्वेश्चन में किसी एग्जाम में 1 to 2 भी आए हैं, किसी में 2 to 3 में है. तो on an average 2 to 3 questions are being asked in the SEBI examination. If you look at out of the total paper, it's not a very high weighted or very heavy weightage examination if I talk about here. Generally, if you look at the SEBI phase 2 paper, तो यहाँ पे आपके जो बाकी सिलेबस है वहां पे कमांड होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे वेटेज कम है. आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 to 3 क्वेश्चंस की वेटेज है. तो ये पहला पॉइंट है कि वेटेज यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है जैसा कि आरबीआई के एग्जाम में होती है या नाबार्ड के एग्जाम में होती है, बाकी रेगुलेटरी बॉडीज में होती है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग हियर. देन कम्स द सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज now do I have to prepare current affairs or not? So guys, if I come to this specific question, do you have to prepare current affairs or not? So in that case, I always say one thing. If you current affairs, let's say if your topics of costing, management, finance, economics, pension sector, if that is being done, if that is you are 100% sure, I would say you are that much sure that कोई भी question आता, I can tackle those questions. If you are that much, if you are in that stage of preparation, definitely I would say you can devote your time for current affairs also, because then it will be the best time to devote your time here. Otherwise, if these sections are weak, if your costing is not good, let's say your management is not good, then I would say current affair will not that be a good chance to start, because current affairs से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पेपर जो आने वाला है वो कहां से आने वाला है, वो आने वाला है आपके जो आपके डिफाइंड टॉपिक्स हैं. कॉस्टिंग है, अकाउंटिंग है, पेंशन है, मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट होगा. तो इन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फोकस कीजिए. दैट वुड बी माय एडवाइस टू दोस स्टूडेंट्स हु ऑलवेज आस्क मी क्वेश्चन, डू आई एक्चुअली हैव टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स और नॉट? सो दैट इज द थिंग हियर. नाउ कमिंग टू द स्टूडेंट्स कि जिनको लगता है नहीं सर मुझे तो अभी भी करंट अफेयर्स करना ही करना है, तो मैं क्या करूं, तो मैं कितने मंथ्स को टारगेट करूं? अब देखिए, जनरली जब मैं आरबीआई एग्जाम्स की बात करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप 6 to 8 मंथ्स पढ़िए, 1 साल पुराना क्वेश्चंस भी आ जाएगा. यहां पे क्योंकि वेटेज कम है तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाना है कि नहीं नहीं मुझे तो इससे बाहर ही नहीं जाना. दैट्स नॉट अ थिंग लाइक दैट. बहुत बेसिक चीज है. अगर आपके पास टाइम है, यू फील के यू हैव टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, सबसे पहले आप पकड़े कौन से करंट अफेयर्स. तो पढ़ने कौन से हैं आप याद रखो, आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स को पकड़ना है, ठीक है. प्लस अब जो रिसेंट कुछ आरबीआई की नोटिफिकेशंस या आरबीआई ने कुछ मेजर चीजें निकाली हैं, दैट शुड बी टेकन केयर बाय यू, ठीक है. अब किसको टारगेट करो, आप कोशिश करो 5 मंथ्स में से, जिसमें से लास्ट 3 मंथ्स आई वुड से कि अगर नहीं है टाइम तो कम से कम हम लास्ट 3 मंथ्स से करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए. अब इसमें क्या है, जो भी सेबी रिलेटेड न्यूज है, सेबी न्यूज आई वुड से दैट इज इंपॉर्टेंट. Not all notifications of RBI. If some RBI has done some major acts or major initiatives कुछ RBI ने लिया तो वो पकड़ लीजिए. जनरली जो SEBI रिलेटेड न्यूज है, PFRD रिलेटेड न्यूज है, IRDAI रिलेटेड न्यूज है, न्यूज रिगार्डिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, दैट इज द न्यूज दैट यू शुड फॉलो, ठीक है. और किसने टाइम के लिए फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है इनको 3 मंथ्स के लिए. इफ यू लुक एट द प्रीवियस पेपर, तो प्रीवियस पेपर में यार एक क्वेश्चन आया था इसके ऊपर, एज पर द RBI गाइडलाइंस हाउ मेनी वर्किंग डेज शुड द की फैक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाई एज द मिनिमम वैलिडिटी. That has been taken from the, अब आपका पेपर था अगस्त में, ठीक है. क्वेश्चन पूछा गया अप्रैल में से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, विच मीन्स मेक इट 5 मंथ. सो आप कर सकते हो 5 मंथ्स तक, ठीक है. बट अगेन गाइस, आई एम नॉट सेइंग फॉर दिस 1 or 2 क्वेश्चंस योर प्रिपरेशन शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप बाकी चीजों को सफर करो. डू नॉट गो ऑन दैट वे.
अगर आपकी बाकी चीजों पे कमांड है देन ऑब्वियसली यू कैन स्टार्ट विद योर करंट अफेयर्स, बट इसकी वेटेज बहुत ज्यादा रिटर्न ऑफ आउटपुट नहीं है, दैट वुड बी द थिंग हियर। नाउ कमिंग टू द सोर्सेज दैट यू गाइस कैन फॉलो, कौन सा बेस्ट सोर्स अगर आपको फॉलो करना है। अब देखो बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं जी, जो कि फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, उसमें आप फॉलो कर सकते हो बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है जी, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है। एंड आई थिंक द थिंग्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर ना, दैट यू गाइस कैन, दैट इज आरबीआई नोटिफिकेशन भी, तो अगर इनमें कोई आरबीआई की स्पेसिफिक गाइडलाइंस या नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कशन हुआ है तो इनको ज्यादा प्रायोरिटी पे पकड़े, डू नॉट गो टू द आरबीआई वेबसाइट डायरेक्टली, दैट्स व्हाट आई वुड एडवाइज यू इन कंटेक्स्ट ऑफ सोर्सेज। बस क्योंकि अब टाइम आ चुका है, एग्जाम आ चुका है, तो मैं नहीं बोलूंगा आप इसको पकड़ो। अब आप बेस्ट क्या कर सकते हो, यू कैन गो विद द कंपाइलेशन, ठीक है। इफ यू लुक एट द कंपाइलेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू इन एडुटैप कोर्सेज, तो वहां पे भी डेडिकेटेड सेक्शंस है आरबीआई नोटिफिकेशंस के लिए, प्लस हमारे डेडिकेटेड सेक्शन है जीए प्लस फाइनेंस, जहां पे हम आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोस थिंग्स आल्सो इफ यू आर एनरोल्ड टू अवर कोर्स। अदरवाइज अगर आप अपने आप पे भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो भी आपको फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, जनरली प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के रिगार्डिंग न्यूज मिलती है, कुछ सेबी स्पेसिफिक न्यूज मिलती हैं, आरबीआई ने कुछ मेजर रिफॉर्म्स निकाले हैं, तो उन चीजों को आप एक बार रीड कर सकते हो। दैट इज द थिंग दैट यू कैन prepare here. Okay guys, so this is all about the doubts that you have in your mind कि क्या हमें करंट अफेयर्स करने हैं तो कितने मंथ के करने हैं, क्या क्या उसमें हम फॉलो करें, क्या पकड़े। So that is the thing that you guys can, that's the thing that I would say, that's the thing that you guys can follow here. Now if you are, so how EduTap is helping, if I say guys, you can click, go to our website, ठीक है जी, and click on the courses and you can click on the courses of SEBI। तो यहां पे जाके आप सेबी ग्रेडेड कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं। इफ यू सी हियर गाइस, यहां पे हम आपको, ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग यू रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू द टॉप अप एमसीक्यूज एंड द टेस्ट सीरीज आल्सो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गाइस, इफ यू रियली वांट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, आई वुड से यू गाइस कैन गो विद अवर टेस्ट सीरीज, ठीक है जी। यू गाइस कैन ईदर गो विद अवर 4000 प्लस एक्सक्लूसिव टॉप अप एमसीक्यूज के साथ जा सकते हो, जहां पे आपको चैप्टर वाइज मॉक्स, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स की या फिर फेस टू टेस्ट सीरीज की, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक्स भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, प्लस आपको यहाँ पे सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, ठीक है। रिगार्डिंग इफ आई टॉक अबाउट गाइस विद रिस्पेक्ट टू के व्हाट आर द ऑफर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू हियर, सो फॉर दैट प्लीज विजिट अवर वेबसाइट, व्हाटएवर विल बी द रीसेंट ऑफर्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू, यू कैन क्लिक टू अवर वेबसाइट, यू कैन गो टू अवर वेबसाइट दैट इज edutap.in, ठीक है। वहां पे जाके जो प्रेजेंट ऑफर्स आपको मिलेंगी आप उनको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। So this is all about this video on how to tackle current affairs for your SEBI Grade A Phase 2 examination. So I really wish you all the best for the examination guys. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.